Hi everyone, welcome to CMS Digital Classrooms. Today we are going to learn the next topic of our chapter, which is related to the multiplication of one digit number. So I know you all are aware about the multiplications and you can do by yourself also. So maybe few of you make mistakes with a longer number, larger number, the number especially is we want to take the carry and all. Okay, so let's discuss, let's revise only, you can say हम लोग रिवाइज करते हैं एक बार, बिकॉज आप लोग सब फैमिलियर हो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन से, और यही हम लोग कर रहे हैं. बट वी विल ट्राई विद सम लार्जर नंबर. हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बिग नंबर पे ट्राई करेंगे, ज्यादा नंबर पे ट्राई करेंगे और देखेंगे किस तरह से किया जाता है. सो लेट्स स्टार्ट विद सम एग्जांपल्स. वन एग्जांपल वी कैन टेक इज मल्टीप्लाई 2132 by 3. So 2132 by 3 we are multiplying. This is the supposed question. Okay. So first we will write this number. Okay. So ones place, then tens place, then hundred place, then thousands place. Right. So in ones place we have 2, tens place we have 3. Okay. Hundred place we have 1. And thousands place we have 2, and we have to multiply with the ones place of 3 only. Okay, so this multiplications we will do. Most important thing in multiplication is just multiply from the ones place. Okay, so 3 2 are 6, 3 2 are means 3 ones and 2 ones. So 3 ones and 2 ones, 3 2 is 6. When you multiply 3 ones and 2 ones, then you will get 6 ones. Okay, so 3 ones, 3 multiply 2 ones is equal to 6 ones. Okay, so next we will move to the tens place. So this ones place we will multiply with the tens place. So 3 3. So 3 3 we know 9. So 3 ones and 33 tens. So here 3 ones and 3 tens. So 3 ones and 3 tens multiply. When you multiply, then it will be 9 tens. Okay. So 9 tens. Now we will move to the 100. So 3 multiply 100. So 3 multiply 100 will be 300. So 300. Now we have is thousands. So 3 multiply how many thousands? 2000. So it will be 6,000. So it will be 3 2 or 6,000. So that means the answer is coming 6,396. It's so simple, very easy. इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो लिखेंगे. इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा ये लिखेंगे. इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा ये लिखेंगे. इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी लिखेंगे, जो भी आंसर आएगा यहाँ पे लिखेंगे. तो इस तरह से बहुत ही सिंपली हम लोग मल्टीप्लिकेशंस कर सकते हैं. ठीक है. Hence we can write this as this 2132 multiply 3 is equal to 6,396. So this will be the required answer. So I am not making so much difficult for you, as however you have learned in previous classes. So I am explaining in that way only. आपने जो भी इससे पहले क्लासेस में जिस तरह से भी किया है उसी तरह से मैं समझाने का कोशिश करता हूँ, otherwise you will be confused. So very simply this is the multiplication with the carrying. Okay, so 5 6 8 and you have to multiply by 4. That's all. Okay, so first thing we will multiply this with this. So 5 8 are 4 8
4 8 are 32. We know 32 is coming. So whenever, जब भी इस तरह का 2 डिजिट का नंबर आता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो राइट हैंड साइड का नंबर होता है, वंस प्लेस का जो नंबर होता है, उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, और ये जो 3 होता है, टेंथ प्लेस का नंबर जो होता है, उसको हम लोग इधर कैरी कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर के साथ जोड़ने के लिए। ठीक है, तो हम लोग चलो इसको कैरी में रखते हैं यहाँ पे 3। ठीक है, तो अब जो है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, टेंथ प्लेस में जो नंबर है। तो 4 6 are 24, so 4 6 are 24। ओके, और हम लोग का 3 कैरी भी है, तो 3 जो कैरी है उसको हम लोग ऐड करेंगे, इसको हम लोग जोड़ेंगे। तो 24 प्लस 3 विल बी हाउ मच, 27। सो 27 में अगेन ये जो वंस प्लेस का नंबर है 7, सिर्फ हम लोग यहाँ पे वही लिखेंगे, और ये जो टेंथ प्लेस का नंबर है ये हम लोग का यहाँ पे कैरी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ कैरी होता है फिर हम लोग इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5। ओके, सो 4 5 are 20, सो 20 एंड ये जो कैरी था 2, इसको हम लोग को जोड़ना है। सो 20 प्लस 2 इज 22। क्योंकि इसके बाद अब कोई भी डिजिट नहीं है तो हम लोग ये पूरा नंबर लिखेंगे। अब हम लोग का कोई भी कैरी नहीं करना है, क्योंकि इसके बाद अब कोई नंबर है ही नहीं, तो कैरी करना नहीं है, तो ये पूरा होल नंबर हम जो है 22 यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह से इसका जो प्रोडक्ट होगा वो 2272 होगा। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, therefore 568 multiply 4 is equal to 2272. This is the required answer. तो ये समझने का बात यहाँ पे है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यही है। ठीक है, कि ये जो नंबर है यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ये 2 डिजिट का नंबर आ जाता है, 4 8 are 32, तो 2 डिजिट का जो नंबर आता है वंस प्लेस को हम लोग सिर्फ यहाँ पे रखते हैं, और जो टेंथ प्लेस है उसको हम लोग कैरी कर देते हैं। ठीक है, तो टेंथ प्लेस को कैरी कर देते हैं, ये आप माइंड में भी कर सकते हो। ठीक है, माइंड में ही करने का कोशिश करो मैक्सिमम, क्योंकि मैथमेटिक्स इज द ओनली वन थिंग व्हिच यू नीड टू कैलकुलेट इन योर माइंड मैक्सिमम। ओके, सो यहाँ पे हम समझाने के लिए आपको लिखे हैं। ठीक है, तो ये 2 हो गया, ये 3 कैरी आ गया इधर। अब 4 6 are 24, तो 24 के साथ और 3 कैरी भी है, तो हम लोग 24 के साथ 3 ऐड करके 27 हो गया। नॉर्मली जब भी आप कैलकुलेशंस करते हो इस तरह का रफ नहीं लिखोगे, इवन यहाँ पे नहीं लिखोगे, आप अपना माइंड में कैलकुलेट करोगे। ठीक है, अपना माइंड में आप रखोगे इसको। ठीक है, तो आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम इस तरह का मैथमेटिक्स बनाने का, जो जिसमें दिमाग का जरूरत हो, जिसमें दिमाग में कैलकुलेशंस रखना पड़ता हो, तभी आपका जो है माइंड इंप्रूव करेगा, तभी आप मैथ में अच्छा बन पाओगे। ठीक है, सो हियर this is now this multiply this will be 24 plus 3, so it is 27. So ones place number will be write here, and again tens place will be carried to the next hundred place. Okay, तो ये हम लोग कैरी रखे हैं। अब इसको फिर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 are 20 and 20 plus 2 is 22. So इस तरह से 2272 will be the required answer of this problem. Okay. Now we will discuss some properties of multiplication. अभी हम लोग कुछ मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी सीखेंगे। ये प्रॉपर्टी से हम लोग मल्टीप्लिकेशन बहुत इजीली कर सकते हैं, या तो उसका कुछ रूल्स जान सकते हैं। ठीक है, उसको और रिड्यूस करके इजीली किया जा सकता है। तो पहला प्रॉपर्टी ये बोलता है कि आप जो 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, जब 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, उसका ऑर्डर आप अगर चेंज भी कर दोगे तो उससे कोई मतलब नहीं होगा, आपका आंसर जो होगा वो सेम आएगा। कैसे? जैसे मान लेते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी से कि मान लेते हैं 4 मल्टीप्लाई 8 हम लिखते हैं, या 8 मल्टीप्लाई 4 लिखते हैं। ये दोनों का रिजल्ट क्या लगता है आपको, अलग आएगा कि सेम आएगा? सेम आएगा। क्यों सेम आएगा? क्योंकि सेम दोनों नंबर जो है सेम है, जस्ट हमने प्लेस चेंज कर दिया है। 4 को यहाँ पहले लिखा है, यहाँ 8 को पहले लिखा है। तो हम लोग जानते हैं 4 8 are how much? 32। और हम लोग ये भी जानते हैं 8 4 are how much? 32। तो इस तरह से
हम लोग ये कंक्लूजन निकालते हैं यहाँ से कि इवन आफ्टर चेंजिंग द प्लेसेस ऑफ टू नंबर द रिजल्ट विल बी सेम। तो इसको हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। तो ये a और b के जगह पे कोई भी नंबर आप ले लो तो इस तरह से सेम होगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट। ओके, अब तीसरा नंबर ये बोलता है, दूसरा रूल्स ये बोलता है कि ये चाहे 2 की जगह पे 3 भी नंबर क्यों ना हो, ये 2 की जगह पे 3 भी नंबर क्यों ना हो तब भी सेम होगा। 3 नंबर कैसे, जैसे मान लेते हैं 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ओके, अगर ये होता है ओके, और इसमें अगर हम ये दोनों को फर्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो भी या तो मान लीजिए यही नंबर है और ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई बाद में मल्टीप्लाई फर्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं और इसको बाद में करते हैं तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो ये मैटर नहीं करता है कि आइदर आप ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हो या ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप कोई भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो पहले हम लोग चेक करते हैं इसको, 4 2 8 मल्टीप्लाई 3, सो 8 मल्टीप्लाई 3 मींस 24। और यहां पे देखते हैं 4 मल्टीप्लाई 3 2 6 and 4 multiply 6 we know 24. You can see the both the result are same. तो हमने यहाँ पे पहले ये दो को मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे पहले ये दो को मल्टीप्लाई किया, जबकि नंबर दोनों का सेम है। ठीक है, तो ये रिजल्ट जो हुआ हम लोग का सेम हुआ। तो इस तरह से हम लोग इसका कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू, सपोज ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो भी a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c और ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं वो सेम होगा। इससे कोई मैटर नहीं करता है कि कोई चेंजेस होता है। ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलता है, थर्ड प्रॉपर्टी बहुत ही इजी है कि कोई भी नंबर के साथ आप 1 मल्टीप्लाई क्यों ना करो वो नंबर जो है वही नंबर इटसेल्फ होगा। फॉर एग्जांपल वी हैव 4 6 3 2, सो अगर इसके साथ आप 1 मल्टीप्लाई करते हो तो ये 4 6 3 2 ही होगा। सपोज 7 3 8 इसके साथ 1 मल्टीप्लाई करते हो सो 738 ही होगा। ओके, सो आइदर it may be any number, so with any number when you multiply 1 then the result will be the same number itself. This is the third property of multiplication. Now let's discuss about the fourth property. Fourth property is saying if you multiply any number with 0 then the answer will always be 0 only. तो अगर कोई भी नंबर को सपोज मान लो 433 को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या होगा, 0 ही होगा। अगर मान लो 78 को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो आंसर क्या होगा, 0 ही होगा। तो ये प्रॉपर्टी से हम लोग को ये पता चलता है कि कोई भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई अगर कर देते हो तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा 0 ही होगा। So this is how these are the some properties of multiplication. As we discussed, first property order of the number doesn't matter. Second property also first two number को multiply करो या second two number को multiply करो कोई मैटर नहीं करता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो नंबर इटसेल्फ होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलता है 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा। ठीक है, तो these all are some properties of multiplication. Question number exercise number 5.3 is all questions are based on the properties of multiplication only. अगर आपको प्रॉपर्टीज सही से समझ में आ गया है तो आप खुद से बहुत इजीली बना सकते हो। यहाँ पे चेक करें कि 43 के साथ कितना मल्टीप्लाई करें कि 56 into 43 होगा। तो ये बहुत ही इजी प्रॉपर्टी है, हम लोग जानते हैं ये b मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b। तो यहाँ पे एक नंबर तो है जो कि 43 है, तो अगर 43 के साथ 56 मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 के साथ 43 मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा तो डेफिनेटली 43 के साथ 56 मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। तो यहाँ पे बहुत इजीली 56 हम लोग लिख सकते हैं विदाउट चेकिंग। ओके, अब यहाँ पे जो है 406 मल्टीप्लाई 20, तो 400 a मल्टीप्लाई b इज गिवन, सो a मल्टीप्लाई b इज b मल्टीप्लाई a। तो अगर 406 के साथ 20 मल्टीप्लाई करने से जितना आंसर आएगा
20 के साथ 6 मल्टीप्लाई करने से उतना ही आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 406। बहुत इजी। यहाँ पे 16 के साथ कितना मल्टीप्लाई करें कि 28 के साथ उतना मल्टीप्लाई करने के बराबर होगा। डेफिनेटली यहाँ पे 28 28 नहीं है, यहाँ पे 16 नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 28, यहाँ पे 16। ठीक है, ये तीसरा प्रॉपर्टी से दूसरा प्रॉपर्टी से है देखो कि तीनों कोई 3 नंबर है तो उसका ऑर्डर चेंज करने से कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो ये जो है पहले 10 और 20 को ऐड किया है, ये पहले 4 और 20 को ऐड किया है, तो यहाँ पे 4 है 20 है, क्या नहीं है 10 नहीं है, तो यहाँ पे हमने 10 मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो आप आई होप यू कैन डू एक्सरसाइज 5.3 बाय योरसेल्फ नाउ। Now we will check multiplications by 10s, 20, 30, 40 dot up to 90 how we can do very easily. I have seen maximum of the students used to do whenever I told to multiply, they used to multiply 0 also. But there is no any uses to multiply 0. Okay. So suppose here one example I am taking 6 multiply 10. Question is suppose you have to do 6 multiply 10. So here what you have to do is 6 1 and 1 tens. So here this means 6 ones multiply 1 tens. So if you multiply 6 ones and 1 tens, then definitely it becomes 6 tens, right? So this is 1, so it will 10. Okay, now suppose I am taking another example which is 14 multiplied with 30. So 14 multiplied 30 for example. So here 14 ones multiply 3 times. So 14 ones multiply 3 times means just you have to multiply this much. So 14 3 are how much? 2. 42. So 42 times, okay, 42 times means how much? 420. Okay, so this is how you can solve multiplications by 10s, 20 and 30 dot up to 90. For example, one another method also we can discuss. Suppose with some another examples. Suppose 15 into 30, 15 into 30 और 15 into मान लो 40, ओके। तो इसको मान लो और एक एग्जांपल्स और एक दूसरा प्रोसेस से भी हम लोग कर सकते हैं। वो प्रोसेस ये है कि 15 मल्टीप्लाई 4 टाइम्स 4 टाइम्स मींस व्हाट 4 ones into 4 टाइम्स। तो इसको हम लोग 40 को 4 into 10 लिख सकते हैं। तो इस तरह से करने के बाद हम लोग जो है इसको आप सॉल्व करेंगे। 4 15 are how much? 4 5 are 0 to 60, right? 60 multiply 10. So 60 multiply 10 means 600. So this is how also you can do. One more example take. For example, 12 multiply 90. Okay. So 12 multiply 90. So 12 multiply 90 means what? 12 multiply 9 multiply 10. So that is how we will first multiply this. So 9 to 18, 8, 1 carry, 9 1 9, 9 108, right? So 108 multiply 10. So 108 multiply 10 will be 1080. So this is how you can multiply very easily if it is asking to multiply with 10, 20, 30, 40 dot up to infinity. Show your homework is exercise 5.3 and 5.4. So 5.3 you can do in book also because space is there, and 5.4 you have to do in copy. Okay, and using that property only. You don't multiply as like by writing
zero also. Whatever the property we learn, you have to do like that only. Okay. Thank you. Have a good time. Take care.